Phase 1 of the historic assembly elections in Jammu and Kashmir have concluded, the first since Article 370 was abrogated and Jammu and Kashmir was converted into a union territory. 24 of the 90 constituencies voted today, 8 from Jammu and 16 from the Kashmir region. Till 5 p.m., Jammu and Kashmir recorded a voter turnout of at least 58.19%, with the people of the valley clearly sending a message that ballot wins over bullets. Now, till reports last came in, Kishtwar had recorded the highest voter turnout at 77.23%, followed by Doda at 69% and Ramban at 67.7%. The higher turnout is also heartwarming, considering the fact that there was a spate of terror attacks both in Jammu as well as in Kashmir regions in the run-up to these elections. Key poll issues include statehood, of course, which has been promised by the BJP, the Congress, as well as its ally National Conference. Let me go across to my colleague Sahil, who's joining us from Srinagar, and he's been tracking the voting day, phase 1 of these historic elections in Jammu and Kashmir. Sahil, good evening. This has been a historic day for people of Jammu and Kashmir, voting happening after the abrogation of Article 370. And it has been a good voter turnout as far as, we see the entire overall turnout. But what's the general sense there that you are picking up now that the voting has concluded? Well, in fact, this was certainly an important election, particularly given the fact that this is the first assembly election that's being held after the abrogation of Article 370. Jammu and Kashmir is a union territory, and this election is taking place. 24 constituencies went to polls today. 23 lakh voters, in fact, were there to cast their votes. So far, overall voter turnout recorded by the Election Commission of India, it's around above 58%. The fresh update is expected to come soon because the 58% was about 58% was recorded till 5 p.m. and there is still voting taking place. We have seen in South Kashmir's Bijbehara and in other areas of Kulgam and Shupaya, people still going inside, in fact, polling stations and waiting for their turn to cast their votes. This is important election given the fact that it's happening in a union territory. People were basically there out today and in huge numbers casted their votes, basically stating several issues, particularly related to civic amenities. They want better roads, better health care and better other civic amenities in fact in their localities. But broader issues that have dominated political spectrum in Jammu and Kashmir, particularly in Kashmir Valley, is certainly the abrogation of Article 370, then restoration of statehood. Bharatiya Janata Party, Home Minister and Prime Minister Narendra Modi have multiple times, they have in fact promised restoration of statehood. Congress has came out with its manifesto, putting it at serial number 1, promising that they will be in fact those among the political parties who will restore the statehood to Jammu and Kashmir. So all political parties were happy today given the fact that there was huge turnout. We spoke to voters on ground zero. They were also happy that because this was the first election that was in fact there was no stone balloting, there was no strike call by any outfit. In fact, those outfits who were largely campaigning for election boycott before 2014 or before 2019 are contesting this election directly, indirectly. We have seen banned outfit Jamaat-e-Islami also fielding its candidates in South Kashmir, in North Kashmir as well. In South Kashmir's Kulgam district, Jamaat-e-Islami backed candidate Sayyar Ahmad Rishi was today in fact seen again visiting polling booths, and his supporters also came out to vote today. So point here is that those outfits who were basically campaigning for the election boycott before 2014 or 2019 were voting today, and this has sent a positive message all across the nation that the era of stone balloting has ended in Jammu and Kashmir, and the higher voter turnout that we witnessed today in Doda and Kishtwar region also sends out a message that people in the region are rejecting terrorism and they are in fact reposing faith in the democracy and democratic values, exercising their right to vote and in fact choosing their own candidates. The overall notion among the people here in Jammu and Kashmir, particularly in South Kashmir, we recorded today throughout the day was that they have been in fact they are getting chance to elect their representatives, to elect their government that can in fact hear them, hear their grievances and resolve those issues. Back to you.
Right, Sahil, thanks very much for joining us with all the latest updates and getting us the general sense among the people of Jammu and Kashmir today as they turned out in good numbers. And they're still, in fact, the last ones in the queue are still waiting for their turn to vote to exercise their franchisee. Sahil, thank you very much. Let me also get in my guest on the broadcast, Pawan Sharma, Editor-in-Chief for TNR 24 Hours Jammu and Kashmir, is joining us. Pawan Sharma ji, namaskar. एक ऐतिहासिक दिन आज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए 58.19% वोटर टर्नआउट अभी तक आया है 5 बजे तक। अभी वो रिवाइज नंबर्स आएंगे, बट कैसे देखते हैं इस हाई वोटर टर्नआउट को आज? बहुत बहुत बड़ी खबर है। खास करके जो लोकसभा चुनावों में जिस तरह से कश्मीर के भीतर इतनी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे थे, आज उसका रिकॉर्ड टूट रहा है। और जब तक ये कंक्लूड होगा 7 बजे तक, तो मुझे लग रहा है कि ये 70 को टच कर जाएगा और ये रिकॉर्ड बनेगा जम्मू कश्मीर के चुनावों में, विधानसभा में, कि 24 विधानसभा के भीतर पहले फेज में ही रिकॉर्ड टूट गया है और दूसरे में और ज्यादा रिकॉर्ड होगा, तीसरे में और ज्यादा रिकॉर्ड होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक नया कश्मीर का जो सपना जो केंद्र सरकार का था कि जम्मू कश्मीर के भीतर इस तरह से हालात बना दे कि हर कोई व्यक्ति अपना वोट डाल सके, तो वो कश्मीर में इस बार पहली बार हुआ है। क्योंकि वहां पर पहले परसेंटेज जाती थी 9 से लेके 12 तक, ज्यादा से ज्यादा 15 तक, लेकिन ये रिकॉर्ड टूटा है लोकसभा चुनावों में और सबसे ज्यादा इस बार। और खास करके इसमें सबसे बड़ी बात एक और भी है कि जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट लीडर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो चाहे जमाते इस्लामी से रिलेटेड हो या फिर इंजीनियर रशीद की पार्टी से जुड़े हुए, उन्होंने जो बयान दिया था कि इस पर्व को, इस त्योहार को मनाइए, ईद की तरह मनाइए, नए कपड़े पहनकर निकलिए, अपना वोट डालिए और लोगों को बताइए कि कश्मीर के अंदर जो नया कश्मीर एक सपना है वो पूरा हो। और लोग वहां पर इतनी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं। और उसी के साथ दूसरी, अगर आप चनाब वैली देखें जो जम्मू प्रोविंस में आती है, तो वहां पर भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये रिकॉर्ड टूट रहा है। पाउडर नाम सैनी में इतने परसेंट वोटिंग होना और साथ में किश्तवाड़ के भीतर वहां पर 70 को टच कर जाना 5 बजे तक, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है और ये अच्छा संकेत है डेमोक्रेसी के लिए। जी जी, और क्लियर एक मैसेज भी दिया है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने कि टेररिस्ट अटैक आप जितने भी कर लीजिए, इलेक्शन से पहले हम बाहर आएंगे, अच्छे नंबर में आएंगे और वोट करेंगे और अपना मतदान देंगे। पर पवन शर्मा जी, मुद्दों की बात की जाए तो एब्रोगेशन तो है ही मुद्दा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, स्टेटहुड की एक बात बहुत चर्चा हुई है इलेक्शन के दौरान। कैसे देखते हैं आप, कैसे लोग अप्रोच कर रहे हैं इन मुद्दों को? क्या कुछ मायने रखता है जब स्टेटहुड की बात करते हैं, जब एब्रोगेशन की बात करते हैं? देखिए, स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि हम देंगे, तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि स्टेटहुड चाहिए और भाजपा का भी कहना है, केंद्र सरकार का जी भी कहना है जी कि समय आने पर आपको राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन 370 को लेकर जो पेच है वो सीधा क्लियर है। तो वो अब कश्मीरी लीडरशिप को भी पता चल चुका है कि 370 वापस आने वाला नहीं है। सेंटिमेंट्स आप ग्रैब कर सकते हैं लोगों के इस मुद्दे के ऊपर वोट के लिए, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि 370 तो वापस नहीं आएगा। हाँ, स्टेटहुड के ऊपर आप बात कर सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि समय आने पर हालात देखेंगे तो चुनाव करवाएंगे और चुनाव करवा दिए और जहां पर डेमोक्रेसी सेटअप हो रही है। और अब दूसरा है स्टेटहुड का, तो वो समय आने पर उन्होंने कहा था कि देंगे। लेकिन ये एक दो ऐसे मुद्दे हैं जो कश्मीर के भीतर ज्यादा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर है सेंटिमेंट्स को लेकर। जम्मू संभाग में भी लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड हो, लेकिन धारा 370 को लेकर जम्मू प्रोविंस का मत कुछ और है और कश्मीर प्रोविंस का मत कुछ और है। लेकिन यही कारण है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जम्मू बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपना अपना एक अलग मुद्दा है। अपने अपने वोटरों को लेकर वो लोगों ने पहले से जी स्ट्रैटेजी बना रखी है। क्योंकि जम्मू डिवीजन के भीतर जो जिले आते हैं, वहां पर अधिकांश लोग जो हैं वो स्टेटहुड का फेवर कर सकते हैं, लेकिन 370 का नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि 370 जो खत्म हुआ है ये अच्छी बात है। लेकिन कश्मीर में इसके उल्टा हो रहा है। वहां पर स्टेटहुड की डिमांड तो जेन्युइन है, लेकिन 370 को लेकर वहां के लोगों की अपनी राय है। क्योंकि जम्मू संभाग में 370 जाने से, 35A जाने से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकि, गोरखास या फिर वो लोग जो दबे कुचले थे, जिनको अपने कई सालों से वोटिंग राइट नहीं था, अपना जमीन का राइट नहीं था, नौकरी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती थी, अब वो लोग डोमिसाइल ले चुके हैं। उन लोगों को अब लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो ये दो डिफरेंट मुद्दे हैं दोनों संभागों के लिए, कश्मीर वर्सेस जम्मू।
और क्योंकि पवन शर्मा जी हर एक पार्टी भाजपा से लेकर कांग्रेस से लेकर एनसी तक सब ये वादा कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से कि स्टेटहुड हम हम लाएंगे आपके लिए स्टेटहुड, इसीलिए हमें वोट दीजिए। क्या लोगों में वो विश्वास है कि ये पार्टी हमारे लिए ला सकती है स्टेटहुड वापस, और क्या वो पेशेंस है, क्योंकि इलेक्शन के लिए भी काफी टाइम से डिमांड थी, जब से एब्रोगेशन हुई थी अब जाके इलेक्शन हुए हैं, वो स्टेटहुड की जो मांग है उसके लिए है पेशेंस, है ट्रस्ट कि हाँ जो भी आएगा वो लेकर आएगा? अब देखिए, जब चुनाव होते हैं इस तरह के मुद्दे जो हैं वो लोगों को भी पता होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो उसके मैनिफेस्टो में तो होते हैं लेकिन बाद में भुला दिए जाते हैं। तो ये शॉर्ट मेमोरीज भी होती है कि कुछ लोग जी। भूल भी जाते हैं कि वो मुद्दा था कि नहीं था। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर में इस बार जो है स्टेटहुड को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अपोजिशन में सब लोग कांग्रेस, पीडीपी, एनसी या तमाम जो लोकल पार्टीज हैं, चाहे पीपल कॉन्फ्रेंस हो, पैंथर पार्टी हो, जितनी भी पार्टीज हैं उनकी डिमांड है कि हमें स्टेटहुड वापस मिले। और सरकार ने भी कहा था और भारतीय जनता पार्टी की भी मांग है कि स्टेटहुड मिलेगा। अब हर पार्टी कह रही है कि स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री का जब दौरा था जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने भी इसके ऊपर कहा था कि देनी तो हमने है, केंद्र में तो हम हैं, तो इसलिए अगर आप स्टेटहुड चाहते हो तो तमाम जितने लोग हैं वो हमारे कैंडिडेट्स को वोट दीजिए। तो अब ये लड़ाई वहां पर है कि दिलवाएगा कौन, देगा कौन और मिलेगी कैसे। ये तीन इसके अलग अलग पहलू हैं, तीनों को हम अलग अलग करके जी। देख सकते हैं। हम्म। अच्छा, ये तो रही स्टेटहुड और एब्रोगेशन की बात, पर हर इलेक्शन में पवन शर्मा जी एक बेसिक मुद्दे होते हैं, वो होता है रोटी कपड़ा मकान। अब अनएम्प्लॉयमेंट यंगस्टर्स के बीच में एक मुद्दा रहा है, बहुतों ने बात भी की है इस बारे में, और कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जो 24.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर का बताते हैं, विच इज मच हायर देन द 6.1% नेशनल एवरेज। इस बारे में हर एक पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या वोटर्स आज ये दिमाग में लेके गए हैं बाहर की अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल, हमने बहुत से पोलिंग स्टेशन के ऊपर आज दौरा किया था, बहुत से हमारी टीमों ने लोगों से बात भी की है। यूथ का मुद्दा एक ही है कि हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार के लिए वोट डालने आए हैं। और जम्मू कश्मीर में जब से एलजी प्रशासन है, हम्म। तब से आप भले ही कहो कि हमने बहुत सी नौकरियां आपको दी होंगी, लेकिन जो लोगों के उम्मीदें थी, यूथ हम्म। को जो उम्मीदें थी कि हमें अलग अलग विभागों में नौकरी मिले, हम्म। लेकिन यहाँ पर दो तीन स्कैम होने के चलते यूथ हम्म। जो था वो काफी निराश हो गया था। प्रोटेस्ट भी कई बार हुए, और जो एवरेज है इतने लोग बेरोजगार हैं, वो जो आंकड़ा है उस आंकड़े से कहीं ज्यादा है। और लोगों का ये यूथ का ये एक अपना मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि रोजगार, रोजगार के साथ साथ जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है स्मार्ट मीटर्स का, बिजली के बिल का। वो लोग ज्यादा परेशान हैं और उनकी उम्मीद है कि जी। सरकार आए, डेमोक्रेसी सेटअप हम्म। हो, जो भी जहां पे सरकार बने वो पहले इन मुद्दों पे ध्यान दे, बेरोजगारी को दूर करे, यूथ को सेटल करे, स्किल डेवलपमेंट के नए नए प्रोजेक्ट लाए जाए। और साथ में जो आम लोगों हम्म। को दिक्कत आती है, बिजली पानी की जो समस्या है, खास करके स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे लेकर जो पार्टी बात करती है तो उसके फेवर में हम्म। पोलिंग जो है वो होगी। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जो प्रांत है उसके अलग मुद्दे हैं, जम्मू प्रांत के अपने अलग मुद्दे हैं। और दोनों की जो जी। लीडरशिप है, कांग्रेस एनसी का अलायंस हो चुका है, भाजपा अकेले अपने दम पे लड़ रही है, वहां पर जो इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं वो उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं। वो एक जिस तरह से इंजीनियर जेल में बैठे हुए एमपी जीत गए, वो एक वहां पर जो एक अलगाववाद की विचारधारा से जुड़े हुए लोग, जिस तरह से वहां पर प्रचार हुआ कि दो मुख्यमंत्रियों को हम्म। हारना पड़ा, जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री थे, महबूबा मुफ्ती हार गई, उमर अब्दुल्ला हार गए। तो वो जो एक जी। अलगाववाद की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के सेंटिमेंट्स को लेकर जो कश्मीर में चला था, वहां पर छोटे मुद्दे पीछे रह जाते हैं, वहां पर इन मुद्दों की कोई तवज्जो नहीं होती, क्योंकि जब आप सेंटिमेंट्स की आड़ में बहना शुरू होते हैं तो ये सब हम्म। मुद्दे दफन हो जाते हैं। लेकिन जम्मू संभाग में ये मुद्दे जो है ये बड़ा फैक्टर है, इसमें बिजली पानी की हम्म। समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, हम्म। और तमाम मुद्दे हैं, किसानों के अपने मुद्दे जी। हैं, किसानों को बिजली के बिल से ज्यादा परेशानी है। अग्निवीर हम्म। स्कीम को लेकर जम्मू कश्मीर में काफी निराशा है, क्योंकि जो बॉर्डर बेल्ट जम्मू कश्मीर की है, बहुत से गांव हम्म। ऐसे हैं जहां से हर घर से एक हम्म। फौजी है, हर घर से फौज में एक न एक गया हुआ है। तो वो उनका एक हम्म। रोजगार का साधन था अग्निवीर को लेकर। हम्म। हाँ, ये बात अलग है कि अब सरकार ने अलग अलग विभागों में जी। अग्निवीर की स्कीम्स के परसेंटेज रखी है कि जो वापस आएंगे उनको एडजस्ट किया जाएगा। खैर वो बात की बात होगी, लेकिन इस समय मुद्दा जो है हम्म। लोगों को रोजगार, बिजली हम्म। पानी, और जहां पर खास करके यूथ को स्किल डेवलपमेंट के लिए नए नए प्रोजेक्ट लाने हैं,
ताकि जूथ जो है, सरकारी नौकरी अगर नहीं भी मिलती है तो जी। आप ऐसे साधन पैदा कर सके जहां पर जूथ जो है उसको एडजस्ट किया जा सके। हम्म जी, I think वो over dependence on government jobs is something that the youngsters also want to get rid of. But देखते हैं आगे पवन शर्मा जी कैसे ये जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन बढ़ता है. I'll wrap it up here. Pavan Sharma ji, thank you very much for joining us on Mirror Now and helping us understand this entire context of phase 1 of the historic elections in Jammu and Kashmir. With that, viewers, let's move on and get to the big